Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next lecture in our economic series that is going to be a very helpful initiative for you people. अच्छा. To be more specific, in the last of the class we majorly had discussed regarding the few of the things regarding क्या primary dealers. ठीक है, primary dealers के ऊपर we had a certain kind of discussion है ना. Now what we will be doing in this of the class is that we will be talking about certain kind of differentiated banks. Now see, this term might be kya very much new to you, but I am sure that you might be using these of the facilities in day to day life. It is just like that you are just not aware about the particular name that I have used right now, है ना. ठीक. So concept किस पे discuss करेंगे? We will be talking about what that is the concept of differentiated bank. Now see, if I'm talking about the concept of differentiated bank, देखो, whenever I am talking about the case of RBI always issues two kinds of banking licenses. ठीक है, two kinds of banking licenses. ठीक है. What are these two kinds of banking licenses? Number first, I will be saying that these are universal banking licenses. ठीक. Number second, I am saying is what? That is differentiated banking licenses. Differentiated banking licenses. ठीक. If I'm saying regarding universal banking licenses, so universal banking licenses majorly means what कि जैसे आपके universally सारे बैंक होते हैं, जैसे for example your Canara Bank, PNB, है ना. These are what? These are your universal banking licenses. These are your universal bank, that are general bank. Now see, when I'm talking about the word differentiated majorly means that is it is different from other of the universal bank. ठीक. अदर ऑफ द यूनिवर्सल बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट है. अच्छा, डिफरेंट क्यों है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सर्व एवरीवन, दैट इज यूनिवर्सली दे आर ट्राइंग टू क्या कवर एवरीवन. ठीक है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंसेज, दीज बैंकिंग लाइसेंसेज आर ऑब्वियसली क्या गिवन टू सर्टेन काइंड ऑफ बैंक्स दैट आर ओनली वर्किंग इन वन पर्टिकुलर नीश का मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड ग्रुप. ठीक है, नीश का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ग्रुप. ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की ही लेंडिंग ये टारगेट करते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर व्हाट? इन ऑर्डर टू एंश्योर योर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक समझ आ गया. यूनिवर्सल बैंक्स आर दोज बैंक दैट आर यूनिवर्सली क्या टारगेटिंग एवरीवन, बट डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर दोज बैंक दैट आर डिफरेंशिएटली क्या टारगेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर नीश ग्रुप. एक पर्टिकुलर ग्रुप पे टारगेट करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग आउट द बैंकिंग सर्विसेज टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर ओनली. ठीक है, ऑब्वियसली बाकी पार्ट बन जाए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फर्स्ट फोकस उनका वो रहता है. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट फोकस वो रहता है, तो फिर क्या इससे क्या होती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ती है. अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर ऑफ द थिंग दैट इज व्हाट आर दीज डिफरेंशिएटेड बैंक्स. ठीक है, सो इंडिया में क्या दो टाइप के डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं. ठीक. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन इंडिया, आई विल बी सेइंग दैट इज इन इंडिया डिफरेंशिएटेड बैंक इन इंडिया. जस्ट वेट अ सेकेंड. In India, I am saying differentiated banks. In India, differentiated banks are majorly or of two types. Number first, I will be saying payments bank. Number second, I am saying is your what? Is your small finance bank. ठीक. पेटीएम करो. ठीक है, वो जो पेटीएम है वो आपका क्या है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक है. ठीक है, एग्जांपल क्या है? पेटीएम.
ठीक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या है, उत्कर्ष उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष बहुत फेमस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। So these two type of differentiated banks are out there. That is number first I am saying are payments bank, number second I am saying small finance bank, ठीक। अच्छा, सो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल बी क्या, इफ द टाइम परमिट्स वी विल बी स्विचिंग अवर डिस्कशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। After that small finance bank we will be discussing regarding payments bank, and after payment bank we will be doing what, we will be doing a comparative study, that is what is the difference between payments bank and what is the difference between payments bank as well as your small finance बैंक, ठीक। तो थोड़ा सा देखना रिगार्डिंग योर डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई शुड रादर बी सेइंग दैट इज नंबर फर्स्ट ऑफ द पॉइंट इज दैट द कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, ठीक, by Nachiket More committee. So very first of the thing that you have to remember is that which committee is majorly responsible for it, ठीक है। So कौन सी कमेटी आएगी आपकी, नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब जाके हुआ था, ठीक है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था अराउंड 2015 में। सो 2013 का कमेटी था, इंप्लीमेंट करते करते क्या अराउंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स को इंप्लीमेंट करते करते इट हैड बीन अराउंड द ईयर ऑफ 2015, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड, नचिकेत मोर कमेटी, these are different from the universal bank and that is why they are called differentiated banks. Why? क्योंकि इनका कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ब्रिंगिंग द बैंकिंग टू दोज ऑफ द पीपल दैट आर यूजुअली अंडरसर्व्ड, ठीक है। छोटे नीश पे काम करते हैं, ठीक ठीक, बहुत छोटे ग्रुप पे काम करते हैं, बट दे ट्राई टू क्या, एनहांस देयर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक। अगला देखो, नंबर सेकंड ऑफ द पॉइंट इज सेइंग differentiated banks are the banks, ठीक है, which cater to serve a specific segment of customers unlike the normal universal banks who offer all financial products, ठीक है। So they are working for a specific segment only, they are not targeting each and every other person that I have told you already, ठीक। Next point they are saying that is differentiation may be based on capital requirement, scope of activities or areas of ऑपरेशन, ठीक है। तो किस पे हो सकता है, क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट पे हो सकता है, ठीक है, कि मतलब हो सकता है यूनिवर्सल बैंक के लिए क्या है कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ईदर दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन योर universal bank as well as your what, as well as your differentiation bank, ठीक है, differentiated bank, ठीक है। इनमें क्या क्या हो सकता है, या तो डिफरेंस कैपिटल रिक्वायरमेंट पे हो सकता है, या स्कोप, मतलब किस सेक्टर को दे विल बी डूइंग व्हाट, दे विल बी सर्विंग, है ना, और इट कैन बी ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर ऑल्सो, है ना, ठीक। सो the options, the points or the diversion could be plenty, ठीक है। so this differentiation bank concept was introduced। अच्छा, अगला देखो, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, that is the differentiation may be based on the capital requirement, scope of activities or the areas of operation, the next point that you have to understand, ठीक। अगला point देखना, this differentiated banking concept was introduced in order to offer the specialized services or unique products, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, क्या किसी स्पेशलाइज सर्विस पे बात करते हैं। अच्छा, ठीक, जो इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ से स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोग अपने डे टू डे लाइफ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। इवन आई हैव वन ऑफ द अकाउंट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, उस पर भी मेरा एक अकाउंट है। तो क्या होता है, देखो, नंबर फर्स्ट ऑफ द पॉइंट दैट इज, अच्छा एग्जांपल क्या है, देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी क्या आमिर खान बड़ा वो करता था पहले, ठीक है, दैट इज व्हाट, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर ऑल्सो हैविंग उत्कर्ष, है ना। सो ये हमारे सामने दिखते रहते हैं बहुत ज्यादा, बट हमें पता नहीं चलता कि भैया ये है क्या चीज, है ना। तो देखो, नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक। दी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर यूजुअली क्या, सर्विंग द अंडरसर्व। देखो स्मॉल का मतलब क्या है, देखो स्मॉल फाइनेंस मीन्स फाइनेंशियल एक्टिविटी, बैंक्स मीन्स बैंक्स, स्मॉल मीन्स ऑन अ स्मॉलर स्केल, ठीक है। सो दी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर वर्किंग ऑन अ स्मॉलर स्केल, स्मॉलर, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे लोगों को ये लोग क्या करते हैं, लेंडिंग एक्टिविटी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, ठीक है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द बैंक्स दैट लेंड आउट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, दे लेंड आउट टू व्हाट, दैट इज स्मॉल business units, small marginal farmers, micro, small and small industries, unorganized sector and those kind of things, ठीक।
अच्छा, अब अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। व्हेन अ स्मॉल फार्मर विल बी गोइंग आउट टू टेक द मनी फ्रॉम बैंक, ठीक है, प्रॉब्ली ही माइट नॉट बी क्या गेटिंग दैट, व्हाई, बिकॉज उसका क्या जैसे फॉर एग्जांपल वो गए HDFC बैंक में चले गए तो बोलेंगे भैया हमारे मिनिमम क्या बैंक बैलेंस आपको 20,000 मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक, करना है करो ओपन अकाउंट वरना जाइए आप, है ना। सो इस टाइप से दे आर क्या डायरेक्टली क्या सेइंग इट, है ना। सो ऑब्वियसली फॉर दीज आर द बैंक्स दीज फार्मर्स आर नॉट वेल suited for, so that is why these small finance bank had been brought up in order to enhance the financial inclusion, ठीक है। छोटे लोगों को usually they are क्या doing out the lending, ठीक। they are private financial institution established under what, established under the public limited company, ठीक, under the companies act of this, ठीक है। they are licensed under banking regulation act of 1949, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दैट, देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर बैंक, ठीक है, कैन बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसे लिस्ट कर सकते हैं, उसके क्या स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी, क्या दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, दैट इज पब्लिक लाइबिलिटी कंपनी, दैट यू मेजरली हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, कि भैया इसके शेयर्स जो हैं दैट कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। अच्छा, नाउ सी द नेक्स्ट ऑफ द थिंग इज दैट, ठीक, दैट इज दे कैन बी प्रमोटेड, अच्छा नेक्स्ट थिंग इज दैट, इसमें देखना, ठीक, RBI स्टार्टेड ऑन टैप फैसिलिटी अंडर द RBI एक्ट दैट कैन एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड द ग्रांट लाइसेंसेस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ऑन टैप फैसिलिटी है ना, इसका वर्ड याद रखना, दैट इज ऑन टैप फैसिलिटी, under which RBI can accept the application for the grant of small finance, ठीक, ओके। एक बार ये भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज दिस ऑन टैप फैसिलिटी इफ आई एम सेइंग, ठीक है। ऑन टैप फैसिलिटी अगर मैं बात करता हूँ ना, ठीक, देखो इसका मतलब होता है दैट इज any of the bank, if I am saying any of the bank can any particular time, that is throughout the year can apply for the license, throughout the year can apply for what, that is license, can apply for what, that is the license of क्या बैंकिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आप अप्लाई करिए लाइसेंस के लिए, और उसके बाद एट एनी पर्टिकुलर स्टेज योर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो क्राइटेरिया है, योर एलिजिबिलिटी कुड बी क्या, कुड बी शिफ्टेड टू व्हाट, टू बिकम अ कमर्शियल यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। सो ऑन टैप फैसिलिटी मेजरली मीन्स दैट इज यू कैन गेट लाइसेंस थ्रू आउट द ईयर, एंड whenever your eligibility suit, your license can be upgraded to the universal banks, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम पे शेड्यूल क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप किस में जा सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल बैंक में, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर ऑन टैप फैसिलिटी, ठीक। अगला एक बार छोटे छोटे इसमें क्या दो चार और पॉइंट्स देख लो, ठीक है, क्या क्या इसमें ऑन क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में होता है, ठीक है, ठीक। एटलीस्ट 10 ईयर्स का आपको क्या चाहिए एक्सपीरियंस, दैट इज एलिजिबल प्रमोटर्स, ठीक है, हूसोएवर इज विलिंग टू ओपन अप स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, दे शुड हैव अ 10 ईयर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपीरियंस, नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। नंबर सेकंड, दे शैल प्राइमली अंडरटेक द बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू द अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड, ठीक। मेजरली इनका जो काम होगा, ठीक है, दैट वर्क विल बी टेक टू ब्रिंग आउट द बैंकिंग इन अनसर्व्ड, जहां तक आज तक क्या बैंक पहुंचा नहीं है, और अंडरसर्व्ड जिनको क्या मिल नहीं पाता, ठीक है, जहां पे क्या बैंक्स पहुंचे नहीं है और जिन सेक्शंस को मिल नहीं पाती बैंक पहुंचने के बाद भी, ठीक। सो दोज सेक्टर्स यू मेजरली हैव टू टारगेट फॉर व्हाट, दैट इज डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑपरेशन, मेजरली इनके यही दो काम है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल इक्विटी इज योर 100 करोड़, ठीक, मिनिमम 100 करोड़ आपके पास होना चाहिए, ठीक। ऑल द प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द RBI एज एप्लीकेबल, ठीक है, जो भी आपके क्या RBI नॉर्मल बैंकिंग के लिए रेगुलेशंस हैं, दैट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर योर स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूडिंग CRR एंड SLR, ठीक है, CRR एंड SLR भी एप्लीकेबल होगा फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। अगला क्या बोलता है, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आई हैव क्या टोल्ड यू व्हाट इज दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि भैया हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इन सब में यू आर क्या डूइंग आउट द लेंडिंग, ठीक। सो आई एम सेइंग दैट इज 75% ऑफ द लोन, ठीक है, हैड टू गो टू व्हाट, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपकी क्या 75% लोन जाएगा, ठीक, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक।
कम से कम 75%। यूजुअली क्या होता है नॉर्मल बैंकिंग में, इट कुड बी क्या 40%, इट कुड बी 30% ना, अराउंड अराउंड क्या, लेकिन इसमें ज़्यादा है। वाई? बिकॉज ये वाले जो बंदे हैं जिनको लोन चाहिए, दे विल बी क्या पार्ट ऑफ दिस प्रायोरिटी सेक्टर ओनली, ठीक है। छोटे लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, ठीक है, दैट इज द केस। नाउ सी, एटलीस्ट 50% ऑफ द बैंक लोन्स एंड एडवांसेज शुड बी अप टू 25 लाख। मतलब इसका मतलब यह है कि भैया आपको बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट पे किसी को नहीं देना। एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन शुड बी ऑफ अप टू 25 लैक्स, ठीक है। सो इन टर्न द आरबीआई इज ट्राइंग टू से दैट यू शुड नॉट बी क्या गिविंग आउट मनी टू वेरी रिच पीपल, ठीक है। सो 50% ऑफ द लोन शुड बी कैप्ड एट अबाउट क्या 25 लैक्स, ठीक। एग्जाम्पल पे क्या क्या बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, दैट इज आई टोल्ड यू रिगार्डिंग क्या उत्कर्ष बैंक एंड योर क्या ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले के टाइम पे भी है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, ठीक। सो दीज आर द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक। नंबर सी क्वेश्चन इज ऑफ 2020 यूपीएससी 2020। क्या बोल रहा है ये, ठीक। इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक, एंड रीजनल बैंक्स, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स आपके क्या कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक से ज्यादा करते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना, यूजुअली जब मैं आपको कोऑपरेटिव बैंक्स बता रहा था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट इज यूजुअली क्या पीपल हु आर गिविंग आउट द मनी, दे आर देमसेल्फ द ओनर। आपस में ही वो क्या कर लेते हैं, क्या लेंडिंग वेंडिंग कर लेते हैं, एंड यूजुअली देयर एम इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक। So when their motive is क्या no profit no loss, obviously they will not be able to bring out lending to the others of the sector जिनको क्या चाहिए lending, ठीक। जब भी आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, यू आर नॉट एबल टू एक्सटेंड टू अ वाइडर स्केल, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट तो क्या मैंने बोला, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में वो लेंडिंग यूजुअली अंदर अंदर कर लेते हैं, आपस में मेंबर्स में ही यूजुअली कर लेते हैं, ठीक। बट दीज बैंक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इनका रीच ज्यादा होता है, दो इनका परसेंटेज कम होगा, बट इफ यू विल बी क्या ऑब्जर्विंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, तो फिर भी इनका क्या लेंडिंग इनसे ज्यादा ही निकलेगा, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, दैट इज ऑब्वियसली शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक विल बी हैविंग मोर क्रेडिट क्रिएशन फॉर दीज ऑफ द सेक्टर, ठीक। अगला पॉइंट देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डीसीसीबीज, दैट इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, is to provide funds to the primary agricultural credit society. Yes, this option is correct. They do provide क्या funds to the primary agricultural credit society, ठीक है। So option will be B, ठीक। That is you have to understand, ठीक। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन ही आते हैं, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, ठीक। एंड यस, जैसे मैं जाता हूँ हमेशा आपसे एक छोटी सी अपील करता हूँ, दैट इज प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब उड़ाना इसका चैनल, बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू कीप अस मोटिवेटेड, ठीक। एंड यस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन डू दैट। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज Sammy2908, ओके। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे एंड करता हूँ थोड़ा सा देखना, ठीक। कैसे, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए, ब्लश 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 ब्लश। वाई? बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ। चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।